Okay, so we'll start with prayers. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so revising yesterday's chapter in short, and we'll start. So yesterday's chapter, eternal knowledge of Bhagavad Gita, when it was received, that we saw. Who can acquire? Krishna told, my devotee, my friend. Okay, or we can say in short, one who is favorable to God, that person can acquire this knowledge. Otherwise, if we are very obstinate, stubborn, modern पण वाकणार नाही. If you are like that, if you don't believe in God, if you don't have any faith, then this knowledge will not come. Then one has to be devotee, one has to be friend, one has to be favorable. That's why at the start of this lecture itself I told that first thing we have to accept is that is something Krishna is giving something good for me, and Krishna is God. We have to accept that, and then the knowledge will come. And here Krishna told about the Guru Parampara. Okay, why Lord Krishna comes, that also Krishna tells, and Krishna tells about the Guru Parampara. Evam parampara praptam evam rajarishe vidusa kale nehamata. Krishna tells yogo nashta parantapa. The yoga or the knowledge which I have given, it goes down, Krishna says, and then Krishna comes. He takes avatar many times. Okay. Then Krishna, we saw the misconception of caste system, and all paths go to same destination. Many people say करो तो भी वही मिलेगा, वो करो तो भी वही मिलेगा, इस देवता का पूजा करो तो भी वही मिलेगा, उस देवता का पूजा करो तो भी वही मिलेगा, वो बाबा का पूजा करो तो भी वही मिलेगा, है ना. जो भी किया तो भी एक ही मिलेगा. या फिर कोई बोलता है कर्म ही पूजा है, मैं अपना सिर्फ कर्म करूंगा, सिर्फ अगर मैं अपने रोज दुकान खोल के बैठ जाऊंगा तो वही मिलेगा मुझे, मैंने कर्म किया है ना, अपना कर्म किया है तो कर्म के हिसाब से ही मुझे मिलना चाहिए. वो बोलता है स्पिरिचुअल नो गॉड, कुछ नहीं, बस मेरा दिन भर मैं बैठूंगा, पैसा आने दे, पैसा आने दे, कस्टमर को जो भी है जैसा भी पैसा मुझे आना चाहिए. तो person feels I am putting my efforts, but then those efforts will lead to some other result. Exact आप बोल नहीं सकते everything gets same result, ये गलत है. All paths go to same destination. That is a wrong conception in human society nowadays. Everybody is working hard, but that working hard, even donkeys also work hard. ठीक है. In this case अगर हम बोलते हैं कि जो work hard कर रहे हैं, we tell many times as teacher, as guide, as mentors, we have to tell that please you have to work hard. Yes, working hard is very much required, but for what? That is very important. ठीक है. Donkeys also work day night, बहुत काम करता है donkey. That work is ass work. ठीक है. We don't want to do that kind of work. So what work we do, that is very important. I will remove donkey from this slide of Bhagavad Gita. Somebody may say, अरे यहाँ भगवत गीता के क्लास में donkey discuss कैसे हो रहा है? So I will. But as such, we see most of the population nowadays is actually compared to our, if we compare our life, nowadays the software engineers, they are working even more than a donkey. Donkey will feel ashamed so much they are working morning to night. It means what? We all are working so hard. Like many are students now, but when you go in your companies and all, so the companies, they give you 30,000, but they want 3 lakhs from you. Then only they can give you 30,000. So accordingly they make you work. So morning you go 9 o'clock, evening you come 6 o'clock or 8 o'clock, you come back. And after that also you have certain mails to answer. You have many things to do. So we work like anything day and night. So there is no problem in working, but then fruits for the work has to be seen where they are going, because they will entangle us. Those fruits define what will happen to us. So our action along with the fruit and the motive, we discussed the motive behind doing those actions.
Then we saw the three types of karma, that is karma, sakarma, the good things according to Vedic scriptures which give us punya. We saw vikarma, bad things or the sinful things which are not according to scriptures, through which we get pap. And then there is akarma, which is papless, punyaless, sinless, reactionless, we can say reactionless karma, which is performed for the pleasure of God. That is akarma. And then we also saw how surrender is very essential. So initial chapters only Krishna is telling about surrender. The second chapter, Arjun himself surrendered. And now in this chapter, fourth chapter, Krishna told that one should surrender to authority, surrender to God, and that surrender should be one should very humbly, before we saw one should be very courageous to accept one's mistake. And here we say that one should approach the spiritual master or teacher with utmost respect, very humbly, and then inquire. Then he can get knowledge. If he pleases the spiritual master, if he pleases the guru, then the knowledge he gets, he will be able to absorb it. Otherwise, it is very difficult. That's why service is very much required. Some people, they are intellectuals. Okay, I have seen that they're intellectuals. They want to know many things. They want to read the scriptures and many things. They are intellectuals. They want to know philosophy. That is very good. But service, when it comes to service, it means something practical to do, like chant daily. Okay, then to serve, to do service. Service can be anything. Physically, you cook the food for God. That is service. Okay, you are distributing the prasad to all people. That is service. You are cleaning the deities of the Lord, you are decorating the deities, you are doing aarti daily. ये सब क्या है? These all things are spiritual services. So when it comes to services, many people lag there. They don't do that service, and because of that, only knowledge is here. Okay, knowledge doesn't go into the heart. Service is very much required. There's one story of Madan Mohan Malviya. You might have heard. Very big person during 1960s, 1960, 1930s, 40s. उस टाइम पे इंडिया का इंडिपेंडेंस नहीं मिला था उस समय के बाद. तो मदन मोहन मालविया, he went to one सन्यासी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. He is guru of Srila Prabhupada. ठीक है, Srila Prabhupada is the guru of Srila Prabhupada. So Madan Mohan Malviya was a spiritual person, and he used to come sometimes to ask many questions and all these things. So Madan Mohan Malviya once went to Bhaktivedanta Saraswati Thakur, and then he had many questions, because he used to read many books and many things he used to ask over, but he had many questions. So Bhaktivedanta Saraswati Thakur told him that what you do is, you wait for some time. I have some other work. That time, can you do some service? So he said yes. So he called one disciple and asked that please engage this great gentleman. He was very very big person. If you search out, आपको मिलेंगे. इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा हाथ है मदन मोहन मालवीय का. आप लोगों ने सुना होगा नाम उनका. Anybody remembers? Okay. So वो मदन मोहन मालवीय जी जो थे वहां पे, फिर वो दूसरा जो पर्सन आया, ही टोल्ड ओके चलो मेरे साथ, मैं आपको कोई सेवा देता हूँ, सर्विस. मदन मोहन मालवीय बोले ठीक है. वो गए. वो पर्सन ने उसको नहीं पता था ये बड़े पर्सनैलिटी, तो उन्होंने क्या सर्विस दे दिया. उन्होंने बोला ये बर्तन धोने के हैं, ये बड़े बड़े बर्तन है जिनमें हमने भगवान के लिए कुक किया है, बर्तन धोना है. तो मदन मोहन मालवीय ग्रेट पर्सन, बट ही सेड ओके आई विल डू दैट. ठीक है, और वो जाके वो बर्तन धोने लगे. ही वॉश द वेसल्स फॉर 1.5 hour, 2 hours हो गया. 2 hours तक उन्होंने वेसल्स वॉश किए, सब वेसल वॉश हो गए. वो डिवोटी बोले थैंक यू वेरी मच. He gave him some prasad also, and then this Madan Mohan Malviya came to Bhaktivedanta Saraswati Thakur, and then Bhaktivedanta Saraswati Thakur is guru of Srila Prabhupada. So he said, Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, yes, please ask your question. So Madan Mohan Malviya said, no, my questions are answered. I realized the answer myself. Great. He said, thank you very much for the service. And then he said, I will do this service daily. He will come, and he did to come and do the services again and again. So what does we understand by that is, if we just do the service, if we just engage in spiritual life, still what happens is the cover of our ignorance gets removed slowly. One is through the torchlight of knowledge also it opens. Okay, and second is by service. Both the things are important. If you just take the knowledge, and if you don't implement it, then still the levels of ignorance will not open. We may get some realizations. Oh yes, sir, आपने बोला correct है. I am not body, I am soul. We understand that, but we don't live on that platform still.
We will live on body platform only, and then we will feel, hey, what I'm doing, I'm only thinking about body, I'm not doing anything about soul. So to get absorbed, to allow it, we have to practice something. Spiritual life may we have to take some step, we have to daily do some practice. That is very important. Now we are starting with the 5th chapter of Bhagavad Gita, that is Karma Sannyas Yoga. So 3rd chapter was Karma Yoga, and this chapter is Karma Sannyas Yoga. So the question, okay, acronym is STEP, step. S for stay in the world, T for 3 doers, P for equal vision, and P for peace formula. So stay in this world is the question. Like here we will see, stay in this world, how, although living in this world amongst all problems, amongst all difficulties, and doing some action, still how not to get entangled. Entangled means समझते हैं हम लोग, बंधना नहीं है इस वर्ल्ड में, रह के भी बंधना नहीं है, यानी कीचड़ में गिरो लेकिन फिर भी कीचड़ खुद को मत लगने दो। गिरो नहीं, हम गिरे हुए कीचड़ में, पूरा कीचड़ है, ठीक है हमारे आजू, तो उसमें रहो, बट स्टिल वी कैन रिमेन प्योर, ठीक है, वी कैन बी डिटैच्ड, so we can be away from the reactions. So how that is possible? Krishna tells that. And 3 doers, this is very important concept. Who does the activities, okay, who controls, are we controller or are we controlled, wo concept hai. Equal vision, how a spiritually advanced person sees everything equally. And then at the end we'll see how we can attain peace. Krishna tells peace formula, wherein he tells how we can attain peace. Okay, just give me 1 second, I'll just switch off the fan. Yeah, so Arjun's question, ठीक है, again अभी भी अर्जुन के क्वेश्चन का, अर्जुन अगेन फेल्ट, बिकॉज इसके पहले वर्ष में क्या है, कृष्णा टोल्ड गिव अप लिथार्जी एंड फाइट, विगत ज्वरा, कृष्णा ने बोला गिव अप लिथार्जी एंड फाइट। तो अर्जुन को समझा नहीं कि क्या करना है एक्चुअली मुझे, कृष्णा क्या बोल रहे हैं, रिनाउंस द वर्क भी बोल रहे हैं ना, रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ वर्क भी बोल रहे हैं। कृष्णा टोल्ड पहले बताया था कि अब वर्क यू हैव टू डू, बट यू डोंट रन बिहाइंड fruits, ठीक है। तो ये वर्क अर्जुन ने ये पॉइंट, this point Arjun is telling Krishna, you are telling me to work, and then later on you are telling me that one should not get entangled in this material world activities में, lust वगैरह के बारे में कृष्ण ने बताया तो डिटेल्स में। So Arjun is not clear, ठीक है, whether to renounce work or work with devotion, क्या करना चाहिए, मैं पूरा वर्क छोड़ दूं या डिवोशन में वर्क करूं, क्या करना चाहिए, which of the two is more beneficial? तो ये दोनों चीज आप समझे क्या? फर्स्ट इज रिनाउंस द वर्क मीन्स व्हाट, दैट यू स्टॉप द वर्क विथ डिटैचमेंट, ठीक है, आप डिटैच्ड है, ठीक है, इस वर्ल्ड से, द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, यू कैन गिव अप ऑल दिस थिंग्स, नो प्रॉब्लम, so that is like stopping. And then Krishna is telling work with devotion, work for me, Krishna is telling. So Arjun is telling which one is higher, whether to work or renounce, I am not clear still. So then Krishna is answering, Krishna is telling devotional service is better than renunciation of work. Outright Krishna बोल रहा है, ठीक है, outright that devotion, working in devotion, working for God is better than giving up activities. ठीक है, like for example somebody says I won't do job, I won't live in family, I won't study, ये सब नहीं करूंगा मैं, ठीक है, and I won't entangle myself into karma, karmic reaction में मैं अटकूंगा नहीं, but another person is telling I will study, I will work, I will have family, I will stay with family, whatever, and I will give results to God. And Krishna is telling which one is better according to Krishna, this one is better. Krishna is telling devotional service is better than renunciation of work. More details. When persons eager to achieve liberation renounce things related to Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is called incomplete. जब कोई पर्सन जिसको लिबरेशन चाहिए, अब हम किसके बारे में देख रहे हैं वो आप एक बार माइंड में फिक्स कीजिए, वी आर
वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, कौन से वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हो? तो हमने देखा था कर्मकांड, है ना, कर्मकांड है, कर्मकांड के भी ऊपर वाले जो लोग हैं, जिनको हम बोलेंगे जो क्या कर रहे हैं, कर्मयोग कर रहे हैं, who are on the path of liberation। ठीक है, कर्मयोग वाले, वी आर टॉकिंग अबाउट सच काइंड ऑफ पीपल। तो यहाँ पे डायरेक्टली आउटराइट स्पिरिचुअल जो who have understood that in this world I have to perform, you know, some spiritual activity for the pleasure of God। मुझे कुछ हायर करना है। अब इस वर्ल्ड की चीजों के बारे में नहीं, हम लोग जो रेगुलर, हम जो 90% लोगों को देखते हैं वो लोगों के बारे में नहीं बात कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग हायर। ठीक है, तो कृष्णा इज टेलिंग हियर दैट इफ people who are, you know, eager to achieve liberation, ठीक है, they renounce things related to supreme state of Godhead, thinking them to be material, their renunciation is incomplete। हमें जो बॉडी मिला है, हमें बॉडी मिला है, you have got some money, you have got strength, you have got intelligence, whatever qualities we have, सबको अगर मटेरियल बोल के हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, जस्ट मटेरियल है, नॉन यूजफुल है, ऐसा बोल के अगर हम छोड़ देते हैं, then Krishna is telling that is incomplete renunciation। ये मटेरियल है, ये इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको तब समझेगा। ठीक है, व्हेन शिल प्रभुपाद, वंस शिल प्रभुपाद के एक फ्रेंड है, वो आए, ठीक है, दैट फ्रेंड सॉरी, एक डिवोटी आया शिल प्रभुपाद के पास, एंड ही सेड, शिल प्रभुपाद सी इन दिस न्यूज़पेपर, एक बाबा का फोटो है। बोले हाँ, अच्छा क्या है? तो बाबा कैसे कर रहे हैं? वो बाबा ऐसे कर रहे हैं, उसका फोटो ऐसा है, ऐसा, यानी इधर पैसा है, मनी, ठीक है, और बाबा का फोटो ऐसा है, मनी, आई डोंट वांट मनी, ऐसा फोटो है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? मनी क्या है? माया है, मुझे नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद सेड, अरे व्हाट यू डू इज यू ब्रिंग मनी हियर, यहाँ पे लाओ, बोले गोल्ड वोल्ड पैसा इधर रखो, बोले, एंड मैं ऐसे करूंगा, बोले उसको ऐसे ऐसे पकड़ूंगा उसको, मैं उस मनी को, ठीक है, और मेरा ऐसा फोटो लेके न्यूज़पेपर में दे दो। तो डिसाइपल बोला, ऐसे कैसे प्रभुपाद, आप क्या बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद सेड, ये जो है ना, अगर कोई बोलता है पैसा मैं यूज नहीं करूंगा, इस वर्ल्ड की चीजों को मैं यूज नहीं करूंगा, इसको दूर रखूंगा, तो दैट रिनाउंसिएशन इज इनकम्प्लीट। What is higher is you use that thing in service of God। If you are using it for yourself, then it is bad, but if you are using it for God's purpose, then it is perfect, it is correct, that is complete renunciation। देखो, अगर जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, some people say कि अरे आप है ना, आप डिवोशनल है, आप लोग भक्ति करते हैं, आप इतने स्पिरिचुअल है, भगवत गीता का प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं, आप देखते हैं, तो आप लोग है ना इतने ये क्यों यूज करते हैं ना? इस्कॉन में स्पेशली बहुत सारे इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी है, साधु है, यूज लैपटॉप्स और मोबाइल्स और ये सब यूज करते हैं। ठीक है, इवन नाउ आई एम यूजिंग लैपटॉप एंड ऑल दिस थिंग्स फॉर सर्विस ऑफ गॉड। आई एम यूजिंग लैपटॉप, पीपल से अरे आप स्पिरिचुअल हो क्या, आप फिर इतना गैजेट्स वैजेट्स ये सब क्यों यूज करते हैं? व्हाई यू यूज ऑल दिस गैजेट्स? व्हाई यू वर्क इन आईटी कंपनीज? व्हाई यू अर्न मनी? व्हाट इज द नीड देन? आप स्पिरिचुअल है, आपका लास्ट एम क्या है? योर एम इज टू रीच टू गॉड, व्हाई यू डू दिस थिंग्स? Your aim is to please God, then why you do use things? So by these things, what we are using, am I using it in my service? Am I using it for my pleasure? No, the pleasure I want to give it for Krishna, so I am doing it as a service to Krishna। So when I am doing it as a service to Krishna, then it is considered as complete renunciation। अगर कोई छोड़ देता है लैपटॉप नहीं यूज करूंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, उसका रिनाउंसिएशन इनकम्प्लीट है। भले ही उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा साधु है, बहुत कुछ है, लेकिन उसका रिनाउंसिएशन इनकम्प्लीट है। हु इज टेलिंग? आई एम नॉट टेलिंग, कृष्णा इज टेलिंग। दैट इज, कृष्णा क्या बोल रहे हैं उसको? कृष्णा इज बोलिंग, फल्गु बोल रहे हैं उसको, फल्गु। फल्गु यानी क्या होता है? फल्गु वैराग्य बोलते हैं, वैराग्यम फल्गु कथयते। इसको क्या बोलेंगे? फल्गु यानी क्या बोलते हैं? फालतू, फालतू नहीं बोलेंगे, यानी फल्गु नकली, नकली वैराग्य, कंप्लीट नहीं है। आपको, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ रहे हैं आपको? यस यस सर। यस सर। यस, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, रास्ते में एक पर्स, आपको मुझे इसका आंसर देना है। ठीक है, अगर रास्ते में एक पर्स गिरा हुआ है, वॉलेट, ठीक है, पैसा है जिसमें, और यहाँ 3 लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। पर्सन ए यहाँ से जाता है, वॉलेट को देखता है गिरा हुआ, ठीक है, वॉलेट देखता है और क्या करता है? इसको उठा लेता है और उठा के जाके और पैसा निकालेगा उसमें से। ठीक है, पैसा निकाल के एंजॉय करता है, अरे आज तो मजा आ गया, आज फोकट में पैसा मिल गया, आज तो बहुत पीऊंगा, आज बहुत
एंजॉय करूंगा, ये सब करके पैसा ये करता है, दैट इज पर्सन ए। ठीक है, पर्सन बी आता है, वो क्या बोलता है, पर्सन बी आता है, पर्सन बी देख वॉलेट, सपोज ठीक है, पर्सन ए कैंसिल कर दिया, पर्सन बी आया, वॉलेट है और उसने देखा, उसका रिएक्शन क्या है वॉलेट को, वो बोलता है अरे पता नहीं किसका वॉलेट है बाबा, ये तो माया है, जाने दो इसको, छोड़ दो। और वो क्या करता है, वहां से वॉलेट को देखता नहीं, वहीं पे छोड़ देता, आगे चला जाता है, वॉलेट को कुछ नहीं करता, कुछ नहीं, आगे चला जाता है, बोलता नहीं ये माया है, देखेगा उसमें पैसा है, पैसा है बाबा रख दिया, माया है, चला जाता है, दैट इज पर्सन बी। एंड देन देयर इज पर्सन सी हु कम्स, सीज द वॉलेट, checks the wallet, अरे somebody's money is there, then he sees wallet में नंबर है, वो नंबर पे कॉल करता है, फिर आपका वॉलेट है, तो वो आदमी आता है, उसको दे देता है, वो आदमी थैंक यू बोलता है, उसको दे देता है, हैप्पी। नाउ यू टेल मी अमंग these three which one is top most? C, person C. Why not B? B वाला भी तो बोला, B वाले ने टच नहीं किया, बोले माया है, छोड़ दिया उसको। What did C do? C ने ऐसा क्या किया that is good, that you liked? सर सी प्रॉपर अपना ड्यूटी किया सर, Very good. ह्यूमन ड्यूटी। What C did was C utilized his intelligence, ठीक है, C utilized ये जो वॉलेट है, उसमें जो वॉलेट में आदमी ने नंबर क्यों लगा रखा था, क्योंकि ताकि उसका वॉलेट गुम जाए तो उसको वापस मिले, है ना, तो C ने वो यूटिलाइज किया उस पर्सन को देने के लिए। अब सबसे बुरा ए है, दैट इज फॉर श्योर, ए वाला बुरा है, दैट इज रॉन्ग, ये आउटराइट मटेरियलिस्ट है। क्या करता है इस वर्ल्ड में, क्या देखता है वो, जो भी चीज मिलता है वो सोचता है ये मेरे लिए है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए। सो ऐसे आपको 99% लोग मिलने वाले इस वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड बोलेंगे हम, इस वर्ल्ड में कोई भी लड़की को देखेगा सोचेगा ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए, दैट इज मेंटेलिटी ऑफ पीपल, दे सी एनीथिंग, दे सी मनी, हाउ आई कैन ग्रैब दिस मनी, ये हो गया मेंटेलिटी। तो ये मेंटेलिटी हो जाता है हमारा, इज लाइक अ पर्सन ए, जो खुद के बारे में ही सोचता है, दिस इज आउटराइट, दिस शुड बी रिजेक्टेड, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, स्पिरिचुअल सर्कल्स में इट इज नॉट एक्सेप्टेड, ये वाला एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अभी बी वाला पर्सन, यस, वो एक एंगल तक सही है, वो बोल रहा है कि उसने खुद के एंजॉयमेंट के लिए वो पैसा नहीं लिया, बट स्टिल कृष्ण क्या बोल रहे हैं, उसका रिनाउंसिएशन इनकम्प्लीट है, उसने छोड़ दिया वैराग्य, वो बोलता है रिनाउंस कर दिया उसने, कंप्लीट रिनाउंसिएशन नहीं है उसका, रिनाउंसिएशन इज देयर बट दैट इज नॉट कंप्लीट। बट सी वाला पर्सन है, ही यूटिलाइज्ड इट फॉर द राइट पर्पस, ही गेव इट टू द पर्सन जिसका था उसको दिया। तो सी वाले ने क्या किया, ही वर्कड विदाउट अटैचमेंट, विदाउट फ्रूट्स, या फिर उसने पूरा ना तो पूरा रिनाउंस किया, वो बी वाले जैसा छोड़ नहीं दिया, और ए वाले जैसा खुद के एंजॉयमेंट के लिए भी नहीं किया, इसने क्या किया, जिसका है उसको वापस दे दो। तो कृष्ण इज टेलिंग अबाउट दैट, इट इज डीप बट विद दिस एग्जांपल इट इज वेरी क्लियर। नाउ वर्क एंड डिवोशन एंड इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन, दोनों में क्या डिफरेंस है, हम क्यों देख रहे हैं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेंटालिटी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में इस तरह से होता है कि क्या कहता है स्पिरिचुअलिटी यानी क्या, छोड़ दो चीजों को, वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट गिव अवर एनर्जी, जो मेरा स्किल है, जो मुझे अच्छा लगता है करने को, वो मैं छोड़ दूं, क्यों छोड़ू, कृष्णा सेज यू वर्क, इफ यू आर सिंगर व्हाई यू शुड गिव इट अप, इफ यू आर अ बिजनेसमैन यू कैन अर्न मनी, आप क्यों सब छोड़ के, कृष्णा नेवर सेज यू गिव इट अप एंड देन यू वर्शिप मी, you should do business, you should work and you should get money, but use that money for God, use whatever you require for yourself, but then remaining what you will do। बहुत सारे लोग होते कमाते हैं और स्विस बैंक में डालते हैं, स्विस बैंक में वो पैसा पड़ा रहता है, खत्म, स्विस बैंक में ही रहता है वो आदमी तो मर जाता है, वो स्विस बैंक के पास ही पैसा रह जाता है। तो ज्यादा पैसा जो भी कमाया हुआ that just remains, it just figures then when you start earning in crores it just figures बस, because you can only utilize few thousand or few hundred rupees for yourself, खाना पीना रहना वही सब, बस उससे ज्यादा नहीं, लाख रुपीस पकड़ लो, बट उससे ज्यादा जो करोड़ों में जो पैसा जा रहा है इज ऑफ नो यूज टू अस पर्सनली, वो जस्ट फिगर में रहता है, हाँ मेरे अकाउंट में 10 करोड़ है, मेरे अकाउंट में 20 करोड़ है, मेरे अकाउंट में 50 करोड़ है, 500 करोड़, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये सब, हाउ यू यूज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क इन डिवोशन allows us to act in eternal position, that is position of soul, so we work on eternal position, that means हम बॉडी से वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, बट किसके लिए करवा रहे हैं, सोल के लिए, सोल इज कनेक्टेड टू गॉड ना, तो सोल का कनेक्शन गॉड से है, हमारे पास बॉडी है, बॉडी का यूज करो, सोल को गॉड का सर्व करने दो, समझ रहे, बॉडी को यूज कर लिया और सोल को गॉड से कनेक्ट कर दिया, सो इटर्नल पोजिशन। देन वर्क, ये जो है इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन क्या है, सोल एक्टिव है
लेकिन क्या कर रहा है ये पर्सन, ये रिनाउंस कर दे रहा है चीजों को। तो सोल को करने की डिजायर रहती है, सोल को एक्टिव रहने की डिजायर होती है। बट दिस पीपल, ये भी स्पिरिचुअलिस्ट है, ठीक है, और ये भी स्पिरिचुअलिस्ट है, दोनों स्पिरिचुअलिस्ट के बीच में बात कर रहे हैं। यहाँ वो ए वाले की बात नहीं हो रही जो पूरा मटेरियलिस्ट है, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बी और सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो रिनाउंसिएशन वाला है, ये क्या बोलता है, ये सोल एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, सोल को चुप कर रहे हो, तू एंजॉय नहीं करेगा। सोल बोलता है अरे मुझे एंजॉय करना है बाबा। तो वर्क इन डिवोशन वाला क्या करता है, वो गॉड की सर्विस में एंजॉय करता है, इज वर्किंग, जो उसमें स्किल है वो सब यूज कर रहा है, मगर गॉड की सर्विस में वो बहुत हैप्पी रहता है, बहुत सेटिस्फाइड रहता है। बट ये पर्सन क्या कर रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी में है, लेकिन ये खुद को दबा के रख रहा है, खुद के डिजायर्स को दबा के रखता है ऑन द अंडर द गार्ब ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। और ऐसे लोगों को देख के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भक्ति स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं करना है हमको, अरे बाप रे इतना डेंजर है क्या, डेंजर उपवास, इतना डेंजर अपने लाइफ को रख रहा है, वो कुछ भी नहीं करते, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं करता, ये दिन भर वो दिन भर घर में ही बैठे रहेगा या पता नहीं क्या एक्टिविटी करेगा, व्हाटएवर। सेंसेस को क्या करते हैं, एकदम रोक रखते हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, ये डिफिकल्ट पोजीशन है मेंटेन रखना। एक दिन ऐसा बॉम्ब फूटता है कि वो आदमी ऐसी गलत चीज कर देता है कि फिर बाद में वो लैमेंट करता है, क्योंकि उसने इतना कंट्रोल करके रखा है, इतना कंट्रोल। फिर एक दिन क्या होता है, एकदम से सेंसेस माइंड ऐसे उसको पागल कर देंगे, और वो ऐसी कोई गलत चीज कर बैठता है कि बताओ। लेकिन जो वर्क इन डिवोशन वाला है वो सेटिस्फाइड रहता है, उसकी इच्छा नहीं होती गलत करने की, ठीक है, because his heart becomes purified if you work in devotion, because it is relation to God। तो सोल का गॉड से रिलेशन आ रहा है, तो क्या होता है, वो पाथ है जो मर्सी वाला वो खुलता है, यू गेट मर्सी। यहाँ पे इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन में स्टॉप गैप सॉल्यूशन है, टेम्पररी सॉल्यूशन है। ये इससे हार्ट भी प्यूरिफाई नहीं होता। टेम्पररी सॉल्यूशन है कि आप एटलीस्ट गलत चीजों में नहीं अटक रहे, दैट इज टेम्पररी सॉल्यूशन है वो, लेकिन नेक्स्ट लेवल नहीं है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट नहीं। This process work in devotion is a very joyful process. In temple, we daily have morning program, ठीक है, टेम्पल में डेली मॉर्निंग में प्रोग्राम होता है, एंड मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 4:30, इफ यू नो। 4:30 को स्टार्ट होता है, 7:30 को सेकंड शिफ्ट पकड़ लो, सेकंड शिफ्ट नहीं बोल सकते, 7:30 को श्रृंगार आरती होता है, तो 4:30 डिवोटीज डेली डांस, डेली कीर्तन, डेली डांस, डेली म्यूजिक, और ये सब एकदम हैप्पी। वन पर्सन वाज टेलिंग मी, अरे आप लोग कितना खुश है ना, जिंदगी में आप रोज कीर्तन करते, रोज डांस, डेली यू सिंग, डेली यू ईट सो मच नाइस प्रसाद, ठीक है। लेकिन बाकी वो देखा, वो पर्सन वो तपस्या, और वो हिमालय में गया, और वो क्या कर रहा है, वो सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, वो ठंडे पानी में जाके खड़ा है, उसमें तपस्या कर रहा है, कोई एकदम गरम गरम आग लगा के ऊपर आजू बाजू तपस्या कर रहा है। ये स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है वो प्रैक्टिस में, ठीक है, दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। Krishna told that is incomplete. Krishna told that this is complete. When you work in devotion, quickly attain supreme, and such a person takes many birth. One who works in devotion, he attains supreme very quickly. Quickly because क्या है, he establishes connection with God. वो God के connection ये गॉड से कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश कर रहा है, ये सिर्फ खुद को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, बस खुद को कंट्रोल करो, सब चीजों से दूर रहो, ऐसा है ये इनकम्प्लीट रिनाउंसिएशन है, एंड कृष्णा इज नॉट टेलिंग अबाउट दैट। ओके, सो वर्क बिकम्स वर्शिप। अगर कोई बोलता है व्हेन वर्क बिकम्स वर्शिप, जब हमारे सेंसेस और माइंड कंट्रोल में है, हम विदाउट अटैचमेंट एक्ट कर रहे हैं, माइंड बॉडी सेंसेस सब यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड एट द एंड एवरीथिंग शुड बी डन फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, प्लेजर ऑफ गॉड। वी डू दैट, देन वर्क बिकम्स वर्शिप। नहीं तो सिर्फ आप दिन भर काम कर रहे हैं, एस वर्क हो जाता है वो, दैट इज नॉट वर्शिप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, ठीक है। नाउ कृष्णा इज टेलिंग, आई लाइक दिस वर्स वेरी मच, पद्म पत्र इवं भसा, दैट मींस जैसे लोटस लीफ है ना, लोटस लीफ देखो आप, इसके नीचे भी गटर है, पानी है, और ऊपर भी ये वाटर के ड्रॉपलेट्स है, बट स्टिल वो लीफ गीला नहीं होता, ठीक है, इट इज अनटच्ड बाय वाटर। कृष्णा इज टेलिंग that if one performs his duty without attachment, surrendering results unto the supreme lord, ठीक है। अगर उसने अटैचमेंट के बिना वर्क कर रहा है, वो रिजल्ट्स किसको दे रहा है, रिजल्ट इज गिविंग टू गॉड, अनअफेक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शन। सिंफुल रिएक्शन उसको नहीं लगता, क्योंकि ये कौन सा है, दैट इज इट इज
akarma. Whatever he does is akarma, and such kind of person is like lotus leaf which is untouched by water. So although in this world उसका बाहर से कोई डिवोटी है तो उसका बाहर से आपको क्या दिखेगा, फ्रॉम आउटसाइड यू विल सी ही इज लाइक अ नॉर्मल पर्सन हु इज डूइंग कर्मी बोलेंगे हम, जो कर्म करता है, सकाम कर्म करेगा या सकर्म करेगा या हम बोलेंगे विकर्म करेगा, ठीक है। तो बाहर से दिख रहा है कि ये सकर्म जैसा ही कर रहा है ये पर्सन, he is also going to company, he is also working, he is also studying, जो भी है उसका जो एक्टिविटी है वो he is getting married, he is also having children, everything. बट इस दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कर्मी है, जो कर्म कर रहा है सिर्फ काय के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए, खुद के सेंसेस के लिए, बस वो स्टोर करता जाता है खुद के लिए बस, वैसा पर्सन, दैट पर्सन इज गेट्स एंटेंगल्ड इन दिस वर्ल्ड. हाउ? he generates karma बाबा, उसका पाप पुण्य का पूरा बनता जाएगा, एक एक अकाउंट बन रहा है, पाप पुण्य ऐसा पूरा बनता जा रहा है. देन लाइफ आफ्टर लाइफ he has to be there. The person who is doing akarma, that is surrendering results to God, such kind of person, उसका कर्मा में बिल्ड नहीं होता, इस वर्ल्ड में अटकता नहीं. ये लॉज जो इस वर्ल्ड के वो उसको ये नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे. ये पीपीटी चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा वीडियो. ओके. So if you are doing detached work, then you will become dear to everyone, ठीक है, and everyone become dear to you. How? Krishna is telling, ये 5.7 में बहुत important, बहुत अच्छा वर्स है. So if you are doing detached work, that is work fruits के पीछे आप नहीं पड़े हैं, you will give fruits to God, ठीक है, then you will become dear to everyone and everyone dear to him. Why you will become dear to everyone? Because लोग क्या बोलेंगे, अरे ये खुद के लिए नहीं कर रहा है ना. Like बहुत सारे सोशल सर्विस वाले होते हैं, पीपल अप्रिशिएट देम. व्हाई? गंदे से गंदा आदमी भी उसको अप्रिशिएट करता है. क्यों अप्रिशिएट करता है? क्योंकि वो बोलता है चलो जान देना, मेरे लिए दूसरे के लिए, वो खुद के लिए नहीं कर रहा है ना. तो वो जो भी कमा रहा है एटलीस्ट वो सबको देगा, हाँ बहुत अच्छा आदमी है, दूसरों को देते, दूसरे के लिए कर रहा है ना, लाइक दैट पीपल से. So one who is does detached work, people become dear to all. He is unaffected by sinful action because he is doing it for God. तो उसको कोई सीन नहीं लगता, इस वर्ल्ड में रह के भी उसको कोई सीन नहीं लगेगा, और सब एक्टिविटीज कर रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है. He attains peace, no anxiety over the result. उसको कोई रिजल्ट का एंजाइटी नहीं है ना. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ क्रिकेटर और आपको बोला क्या करना है, बस आपको परफॉर्म करना है, अच्छा बस आपको रिजल्ट का नहीं, आपको वर्ल्ड कप जीतना है, आपको जो भी कोई कप है वो जीतना है, आप रैंक 1 आना चाहिए, आपका सेंचुरी होना चाहिए, वो सब के बारे में सोचना ही नहीं. क्या के बारे में सोचना? आई शुड डू माई बेस्ट. सिमिलर स्टूडेंट ऑल्सो, if student understands this thing na, I have to do my best, I don't have to think about results, then whatever he does is बहुत perfection पे आ सकता है. He can become the best version of himself. अगर वो सोच सकता है स्टूडेंट इस हिसाब से कि मुझे एक्टिविटी करना है, आई वांट टू स्टडी, बट फ्रूट्स के लिए ये नहीं करना है, सोचना नहीं. बट क्या होता है प्रॉब्लम, हम जब सोचते हैं फ्रूट्स के लिए नहीं सोचना है, तो हम एक्टिविटी करने में भी क्या कर देते हैं, हम लोग कम कर देते हैं. अरे फ्रूट्स के लिए नहीं कर रहे तो फिर क्यों करें? Because we have not sufficiently established our relationship with God. Like Arjun has established. Arjun fight करेंगे आगे जाके, क्यों करेंगे? For Krishna. He don't want result for himself. Then he is only fighting for Krishna. So for God's pleasure he is doing that. That's why his work is detached work. Also although he's killing people, still he will not get reactions. Okay. So we now go to the next topic, 3 doers, which is the most important topic. And these 10 minutes when I'm describing these 3 doers, as such है ना, ये एक एक चैप्टर भगवत गीता का एक एक महीना चल सकता है, ठीक है, एक एक हफ्ता तो चल ही सकता है, लेकिन हम लोग उसको कंप्रेस करके ओवरव्यू में वी आर सीइंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स, नॉट द एग्जैक्ट व्हाट वी से वर्ड टू वर्ड मीनिंग. हम कांसेप्ट समझ रहे हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा फास्ट जा पा रहे हैं. लेकिन फिर अब ये कांसेप्ट्स में भी बहुत बड़े बड़े कांसेप्ट्स है. तो पहला वाला कांसेप्ट, डिटैच्ड वर्क वाला कांसेप्ट, इट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग टू एब्सॉर्ब एंड टू इम्प्लीमेंट, है ना. नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग इज द डूअर्स, 3 डूअर्स वाला. सो अगेन आई रिक्वायर योर अटेंशन, फुल अटेंशन. अगर आप समझ सकते, फुल अटेंशन देंगे तो आप ये चीज बहुत अच्छे से समझेगा. एंड देन your life will not be same if you understand this concept. अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, Krishna is telling here that there are 3 doers, ठीक है.
आप अकेले डूअर नहीं है, इन डूअर है. ओके, जस्ट वन सेकंड. Now suppose I want something, ठीक है, मुझे कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए सपोज, ठीक है, आपको आपका anybody would like to tell what is your favorite food dish? Anybody? वो एग्जांपल लेंगे फिर. एनीथिंग, कुछ भी नाम ले लो, स्वीट में बोल दो, एनीथिंग. Okay, Vivek, thank you. So, thank you for taking initiative. That is Puran Poli. Okay, so I also like Puran Poli very much. Thank you very much. You reminded. So now what happens is immediately when we think about Puran Poli, we just read the word Puran Poli. What mind does is mind immediately brings the photo of Puran Poli. Then mind में emotion stored है. Mind will bring those emotions, image, emotion, the people. ऐसा करके पूरा माइंड, दैट इज माइंड एक्चुअली. व्हेन वी गो इन स्पिरिचुअल लाइफ डीप, हम एक एक चीज को एनालाइज कर सकते हैं. अरे ये माइंड है, माइंड अभी थॉट दे रहा है, क्योंकि मैंने है ना आंखों से, सेंसेस से पूरी वर्ड पढ़ लिया सपोज, ठीक है, वो वर्ड सेंसेस से गया माइंड में, माइंड ने स्टार्ट कर दिया इमोशंस, क्योंकि माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स ना, माइंड में सब स्टोर हाउस होता है थॉट का, तो माइंड इमीडिएटली उससे रिलेटेड ये सब. डेंजर सॉफ्टवेयर है अपना. जैसे गूगल में आप कभी कभी डालेंगे ना, विल पुट, सपोज यू वांट टू सर्च भक्ति, ठीक है, आपने बी टाइप किया, वहां पे क्या आ जाता है, बी डाला तो बॉलीवुड बी से बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, बी 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 सब आ जाता है ना. यू टाइप एच, फिर बी एच से और कुछ आ जाता है, फिर ए के टी आई डालना पड़ता है आपको पूरा, तब भक्ति, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग. सो ऐसे आप, माइंड है ना, माइंड को अगर थोड़ा कुछ दे दो तो माइंड इमीडिएटली उससे रिलेटेड सारी चीजें ला सकता है. दैट इज आवर माइंड. एंड इन 6th चैप्टर, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल माइंड. बहुत इंपॉर्टेंट. हमने पहले भी देखा माइंड के बारे में, हाउ टू कंट्रोल माइंड हमने देखा है, थोड़ा सा सेंसेस को कंट्रोल करो ये सब देखा है. कल हम लोग थोड़ा सा माइंड के बारे में और है, स्पेशली अर्जुन पूछते हैं ना, इसलिए हम लोग उसके बारे में और देखेंगे कल के टॉपिक में. So yes, we will start with Puran Poli. Suppose, ठीक है, suppose you want Puran Poli, and nowadays if you want Puran Poli, then immediately we can bring it. ठीक है, हमें we can call for it. ठीक है, हम उसको चाहिए कहीं से भी ला सकते हैं. कैसे, तो आप suppose for example Swiggy या फिर Zomato कॉल कर लेंगे, वो ला के दे देगा आपको पूरन पोली. सपोज वो देते होंगे, तो आई डोंट नो पूरन पोली उनके मेनू में है क्या, बट वो देते हैं क्या. कमिंग टू दिस एग्जांपल, विल कम टू दिस एग्जांपल आफ्टर वर्सेस. ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि आई डोंट अज्यूम एनीवन सिंफुल और पायस एक्टिविटी. अभी आपका पूरन पोली खाने का डिजायर है, ये अच्छा डिजायर हो सकता है, ठीक है, या किसी का कोई गलत डिजायर भी है करने का. आप किसी का खून करना है, या किसी को कोई गलत चीज करना है, बैड हैबिट है, या जो भी है, ये सब चीजें, तो वो जो राइट एंड लेफ्ट, जो सही गलत चीज कर रहे हैं ना, कृष्ण इज टेलिंग मैं उससे दूर हूं. ठीक है, ये कौन है, ये कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट, आप वो कर रहे हो. और द embodied being क्या सोचता है, however is bewildered because of ignorance which covers the real knowledge. आदमी को क्या लगता है, उसको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट एक्चुअली हमने ही जो डिसीजन लिया था. सपोज वी किल समबडी एंड देन हमें पुलिस विल कैच अस, हम क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे भगवान हमारे साथ क्यों ऐसा किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब है. बट एक्चुअली कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि he is not responsible for all these things. He is outrightly saying you are responsible. I don't take anybody's and sinful pious activities. वो सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है. ठीक है, सॉफ्टवेयर में डाल दिया है. जैसे गेम का रूल है ना, वीडियो गेम का रूल है, जैसे वीडियो गेम में आप अगर इस रोड पे गए, आपने अगर किसी आदमी को मार दिया तो आपके पॉइंट कम हो जाएंगे, है ना, किसी आदमी को मार दिया तो पॉइंट कम हो जाएंगे. ऐसा वो अपने आप रूल है. आप वीडियो गेम मेकर को कुछ नहीं बोल सकते. यूर ड्राइविंग यू हैव टू इम्प्रूव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कृष्णा यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आपके जो पायस और सिंफुल एक्टिविटी है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक्टिविटी कौन कर रहा है एक्चुअली फिर. ठीक है, तो कृष्णा बोल रहे हैं एक्टिविटी करने वाले 3 लोग हैं, सोल, सुपर सोल एंड मटेरियल नेचर. तीनों मिलके कोई चीज करते हैं. ठीक है, सोल क्या कर सकता है, कृष्णा इज टेलिंग ही कैन डिजायर, यूजिंग हिज फ्री विल ही कैन जस्ट डिजायर फॉर द थिंग.
Then super soul, that is the Paramatma within everybody's heart. So there are two people in heart, in this body. One is soul, another one is super soul, that is God, which is always there with the soul within this body. ठीक है, God himself. ठीक है. Then material nature, हम बोलते परमात्मा, आपने वर्ड कई बार सुना होगा. सुपर सोल सैंक्शंस अकॉर्डिंग टू योर कार्मिक क्रेडिट, आपके कर्मा में जो किया है उसके हिसाब से. एंड मटेरियल नेचर कैरीज आउट द एक्शन. सी इट विद द एग्जांपल. ठीक है, हमारे एग्जांपल पूरन पोली के एग्जांपल से देखते हैं. ठीक है, जीवा ने क्या किया, डिजायर किया. क्या डिजायर किया, आई वांट पूरन पोली. पीपी लिखता हूँ, पूरन पोली चाहिए. ठीक है, अभी पूरन पोली चाहिए. ईश्वर सीज कर्मा एंड क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली अवार्ड्स. अगर आपके इसमें है, ठीक है, देन प्रकृति को ऑर्डर किया जाएगा एंड देन प्रकृति विल परफॉर्म द एक्शन एंड यू विल गेट दैट पूरन पोली. तो इसमें सारी चीजें है ना, अपना बॉडी भी तो प्रकृति है ना, हमारा बॉडी हम थोड़ी है, सोल इज डिफरेंट है ना. सो देन जीवा विद द हेल्प ऑफ दिस बॉडी कैन गेट दैट थिंग. क्योंकि आप बोलेंगे सर मुझे चाहिए तो मैं खुद ला रहा हूँ ना, गॉड किधर है पिक्चर में. मैंने ऑर्डर किया, वो जोमेटो को पैसा किसने दिया, मैंने पैसा दिया, वो दे रहा है मुझे लाके. वेयर इज गॉड इन पिक्चर. ठीक है, but please understand, without the sanction of God, even a small ant cannot move. हमने सुना ना, पत्ता भी नहीं हिलता भगवान के मर्जी के बिना. that is actually correct. ठीक है, we'll give example. see, ये पूरनपुली वाला तो बहुत छोटा एग्जांपल हो गया, छोटा. बट अगर बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, he wants जैसे सपोज शाहरुख खान. ठीक है, शाहरुख खान हैज नाउ गॉट सो मच नेम फेम, इतना बड़ा एक्टर हो गया. ठीक है, अभी कोई दूसरे लोग नहीं है क्या जो चाहते हैं शाहरुख खान बनना, जो चाहते हैं बड़ा फिल्म स्टार बनना. कई सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं. और ऐसे नहीं है क्या वो लोग हार्डवर्क नहीं करते, दिन रात हार्डवर्क करते हैं सर. वो दिन रात, वो सुबह उठते हैं, सुबह उठ के वो क्या करेंगे, वो कराटे का, मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करेंगे, योगा करेंगे, अपने स्किन को सही रखने के लिए रोज आयुर्वेदिक ये करेंगे, बहुत सारी चीज करते हैं लोग, बहुत सारी. आप अगर जाके देखेंगे जो फिल्म स्टार्स के लिए, फिल्म इसके लिए वर्क कर रहे हैं वो लोग, इवन राइट फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज बोथ. बॉयज अपने बॉडी के कट्स वगैरह डेवलप करके रखते हैं, 6 पैक उनको रखना पड़ता है रेडी, फिर तो उनको किसी मूवी में चांस मिलेगा. बॉडी का उनके एक पिंपल भी नहीं चाहिए, एक कहीं पर भी ये हो गया कुछ तो रिजेक्ट हो जाते हैं वो. तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ बॉडी, हेयर, सो मच. और वो इतना हार्डवर्क भी करते हैं, दिन रात हार्डवर्क करने के लिए रेडी है. अलग अलग सेट पे जाओ, वहां पे डांस प्रैक्टिस करो, डांस का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है. हीरो इस जोक नहीं है, हीरो को मार्शल आर्ट्स का भी प्रैक्टिस चाहिए, एक्टिंग बहुत अच्छा चाहिए उसको, बॉडी उसका उतना ट्रेन रखना पड़ता है. एट द सेम टाइम उसको क्या कहते हैं, उसको ये हम बोलेंगे जो एक्टिंग के लिए जो सारी चीजें लगती है, जैसे कुछ चीजें लगती है, कराटे फाइट वगैरह करना, वो सब चीजें लगती है, बहुत सारे ड्राइविंग वगैरह, ये सारी चीजें उसको आना चाहिए. ठीक है, जो भी है हार्डवर्क करने के लिए भी लोग रेडी है. ठीक है, शाहरुख खान से ब्यूटीफुल लोग नहीं है क्या? व्हाट डू यू थिंक? देयर आर मेनी. यस और नो? If somebody is fan of Shahrukh Khan, then I don't know, sorry, but he will like Shahrukh Khan only. But there are many people who are very beautiful, very handsome than him also. Shahrukh Khan लेते, बहुत सारे और भी सारे अलग जो भी है, जो भी. But they desire. But if it is in their karma, then only it will be sanctioned. Who sanctions? Prakriti gives that. Through Prakriti the person will get, otherwise the person doesn't get. तो आप बोलेंगे मैं सैंक्शन करूंगा, मैं, मेरे हाथ में सब कुछ, आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है सब कुछ. We can only desire. If it is not in our karma, we won't get it. हमने भले ही जोमेटो को फोन लगाने का ट्राई किया, फोन नहीं लगेगा, लग गया वो बोलेगा सर बंद हो गए. अगर चालू भी है तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग. वो बोलेगा पर्सन आ गया तो आपके घर पे नहीं, किसी और के घर पे गलती से चला जाएगा. whatever thing may happen, if it is in our karma, then सैंक्शन के थ्रू हमें मिलता है. सैंक्शन नहीं होगा कुछ. ये देखो हमारा बॉडी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, हमारा बॉडी भी समटाइम्स व्हेन यू सी द पर्सन, सम पीपल दे गेट पैरालाइज हो जाता है, तो उनका हाथ भी नहीं उठा सक रहे. ठीक है, हाथ भी अपने कंट्रोल में नहीं है. तो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, हमारे कंट्रोल में नहीं है. बट द जीवा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते. कृष्णा टेल्स दैट अहंकार की वजह से
वो जीवा क्या सोचता है, he thinks that कर्ता अहम इति मन्यते, he thinks that I am the कर्ता, मैं कर रहा हूँ चीजें, ऐसा सोचता है वो पर्सन. So if दिस केस यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, पॉजिटिव चीज ले रहे हैं. जीवा डिजायर करता है, ठीक है, ईश्वर देखते हैं उसके कर्मा में है क्या, उसके पास्ट एक्टिविटीज है क्या, हाँ पास्ट एक्टिविटीज है, पास्ट एक्टिविटीज का उसका कर्मा अच्छा है, ही शुड गेट इट, ओके. ईश्वर ऑर्डर्स प्रकृति एंड देन प्रकृति परफॉर्म्स द एक्शन एंड जीवा गेट्स इट, ठीक है, जीवा को मिल जाता है. सो इन दिस केस देन जीवा बिकम्स, जीवा है ना सोल, सोल बिकम्स टेम्पररीली हैप्पी, बट डिजायर सेटिस्फाई नहीं होता, ही वांट्स मोर एंड बेटर. कि एक बार उसको मिल गया, वो क्या बोलता है, मुझे और चाहिए और चाहिए, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं होता वो. सेकंड, यहाँ पे क्या होता है, रिजेक्ट वाला ऑप्शन है. जो डिजायर करता है मगर ईश्वर रिजेक्ट कर देते उसको, दैट मीन्स ही डजंट गेट इट. अब कई लोग बोलते हैं कि वो एक बुक है, हैव एनीबॉडी रेड दैट बुक, सीक्रेट करके, द सीक्रेट, किसी ने पढ़ा है, सुना है उसके बारे में, द सीक्रेट बुक के बारे में? हाँ सर. Yes, sir. Yes. So वो secret book, what it tells is that you ask, you want, you develop the desire for something. बहुत strong desire develop करो, तो पूरी जो कायनात है वो आपको वो चीज मिलाने के लिए ढूंढ जाएंगे, है ना, बोलते हैं. तो उसमें that is actually certain extent it is correct because desire करो, they are telling to desire, but just by desire we don't get. There is karma, they forget. उसमें कर्मा वाला पॉइंट उनको नहीं पता, ठीक है, they don't know the karma option. कर्मा वाला पॉइंट वो टोटली मिस कर देते, that's why that book fails, ठीक है, वो 100% सही नहीं है, कर्मा वाला पॉइंट नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या राय, I don't know why I'm getting example of movies only, stars only, but आ रहा है वो example. ऐश्वर्या राय, many people wanted to marry her, but who could marry? Only अभिषेक बच्चन, he could marry. ऐश्वर्या राय से मैरी करने वाले बहुत सारे लोगों ने डिजायर किया रहेगा, आई वांट टू मैरी ऐश्वर्या राय, आई वांट टू मैरी, बहुत स्ट्रांग डिजायर है. somebody might have committed suicide also जब उसका शादी हो गया, तो सोचो कितना स्ट्रांग डिजायर था ऐश्वर्या राय को मैरी करने का, बट हु गॉट इट? ओनली अभिषेक बच्चन, ही गॉट इट, है ना, ही गॉट हर. सो एक्चुअली it is not just our hard work, not just our desire, it should be in our karma also. Soul desires, but if it is not in his karma credit, karma में नहीं है, then he doesn't get it. Somebody may say now, question आ सकता है, then should we do karma or not? Should we do activity or not? okay? जैसे कोई बोलेगा सर अगर मेरे इसमें नहीं रहेगा तो फिर मैं क्यों फिल्म स्टार बनने के लिए ट्राई करूं? बट बाबा, we don't know if your activity itself, अभी जो कर्मा कर रहा है, that is for future ना, future result उसके ऊपर से आएगा आपका. तो we have to do activity, that is very important. तो अभी हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, रिजेक्ट हो रहा है, सॉरी हम डिजायर कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, बट देन वी शुड हैव सम डिजायर्स, ठीक है, कोई डिजायर हमें चाहिए, डिजायर करना चाहिए, बट दोस डिजायर्स शुड बी प्योर डिजायर, नॉट जस्ट एनी डिजायर व्हिच एंटेंगल्स अस इन दिस वर्ल्ड. जैसे ये रैट का ये जो पर्सन है, इसका डिजायर क्या बता रहा है, ये पैसे के पीछे अटा और ये अटक गया इस वर्ल्ड में, ठीक है. So desire is what we can do, but that desire also we have to purify that desire. So I hope this point is clear, that we are not just the only doers. There are two more people. One is Ishwar, super soul, who sanctions it, and then there is Prakriti who facilitates it. ठीक है, वो प्रकृति हमें प्रोवाइड करते हैं, ईश्वर सैंक्शन करते हैं. अगर सैंक्शन नहीं होता है तो हमें नहीं मिलेगा. एंड एक्चुअल वर्क कौन कर रहा है? तो प्रकृति इज डूइंग वर्क, वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग द वर्क, ठीक है. हियर वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज सुपर सोल आल्सो विद इन आवर हार्ट, ठीक है, सोल भी है, सुपर सोल भी है, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट. So such a person now who is on spiritual path, he is doing work in devotion. Such kind of person who understands that soul, super soul and prakriti, these three are the doers together, not just the soul. सिर्फ soul doer नहीं है, ये तीनों भी doer है. तो वो person क्या हो जाता है? He becomes peaceful in life, ठीक है, और उसका vision कैसा होता है? Equal vision होता है सबके लिए. वो फिर सोचता नहीं है, वो डिस्करेज नहीं होता. जब हम वो समझ जाते हैं ना, ये वाला पॉइंट अगर हम समझ गए, कौन सा वाला? ये वाला पॉइंट. इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इफ यू अंडरस्टैंड ईश्वर, प्रकृति और जीवा वाला पॉइंट, तो फिर हमें अगर हमारे फ्रूट्स का रिजल्ट नहीं मिला तो हमें डिस्करेज नहीं होते. मेनी पीपल
they work hard, and if they don't get result, they become dejected in their life, they become morose, they give up everything. Some people they commit suicide. ये सब why? Because they are not knowing, ये पूरा picture उनको नहीं पता है, ठीक है? That's why. And thus these people, they cannot be satisfied, those who don't know this thing. But when you know these things, you become actually satisfied and work. But when while working, if you don't get the output what you want, you are satisfied, you understand, I have given my best, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है. अब ईश्वर और प्रकृति ये दोनों है, ठीक है? ईश्वर हैज टू सैंक्शन, अगर मेरे कर्मा में है तभी वो सैंक्शन होता है, नहीं तो वो नहीं होता है. That is, yeah, that gives us a lot of solace, that gives us actual understanding of activities and understanding of this world. नहीं तो हम लोग blind है. If we don't have this knowledge of Bhagavad Gita, actually we are blind. We are just working in this world, but we don't have clarity of the things which are happening. हो रहा है, जो चीजें हो रही है, हम समझते हैं मैं कर रहा हूँ इसलिए हो रही है, नहीं. और हम समझते हैं नहीं मिली तो हम रोते, we cry, why God, many times. हम कोई चीज हमें मिल गई तो हम will not remember God. अरे मैंने खुद ने किया है. जैसे फॉर एग्जांपल वन डॉक्टर, ठीक है, once what happened is one person, one क्या बोलते हैं, एक पर्सन था, उसके फैमिली में उसकी मदर थी कोई, तो भी उनकी मदर का हेल्थ अच्छा था, हेल्थ बहुत बुरा, कुछ तो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल गए थे. एंड देन डॉक्टर, वो क्योर हो गई मदर, ठीक है, डॉक्टर ने हॉस्पिटल वो सर्जरी हो गया पूरा एंड क्योर हो गई. सो दिस पर्सन, ये लोग बातें कर रहे थे वहां पर कि डॉक्टर को थैंक यू बोला उन्होंने, लेकिन वो बातें कर रहे थे भगवान की कृपा से सब हो गया, भगवान की कृपा से अच्छा हो गया, ये सब है ना. तो वो पर्सन क्या बोला, डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर सेड भगवान, ही वाज नॉट बिलीविंग, ये भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान किधर है, मैंने किया है ये सब, तो मैंने किया है, मैंने सर्जरी किया, मैंने उसको बराबर किया, क्या तुम भगवान बोल रहे है ना. He told like that. So one of the person was devotee there. He stood up, he said, yes डॉक्टर, एक पूछना चाहता हूँ आपको. हाँ बोलो. बोले डॉक्टर, वो एक लास्ट वीक में यहाँ पे एक आदमी मर गया था आपके हॉस्पिटल में, आप सर्जरी कर रहे थे, वो मर गया था, वो आपने उसको मारा. मैंने कहा मारा, वो तो उसके इसमें था, कर्मा में था. वो मैंने कहा मारा, उसके इसमें था मरना, भगवान ने मारा, मैंने कहा मारा. So then this person said, मर गया तो भगवान ने मारा है ना, और वो बच गया तो आपने बचाया, ये गलत है. So from doctor side what he did was, he did his endeavor. डॉक्टर ने उसका endeavor किया, we should accept that endeavor is appreciable, है ना. But the fruits that the person is getting, he is getting according to his karma. हमें proud नहीं होना चाहिए. If we help somebody, sometimes we become very proud. We help somebody, मैंने उसको help किया, but you are just an instrument. आपने वो भिखारी को चपाती दिया, you are just instrument. If we don't give, somebody else will give. उसके कर्मा में है अभी चपाती. So this world is making us do these things. ठीक है, अब now I am giving this knowledge to all of you, that I cannot become proud for that, because it is your God in your heart who is directing you from lakhs of and thousands of people whom we reached. ठीक है, उनमें से lakhs नहीं, हम we reached some 100, 500, 300 लोग जो भी हम reach हुए. From them you are attending these sessions, so credit is not neither mine nor yours. It is God is according to your karma, okay, according to your past karma. Somewhere you might have decided in your past life or in your previous life that you might have this question that I want to know you, God. You might have thought about this thing, you might have desired this thing, and then somehow or other the what do you say, the dots, they are joined, the picture is formed, and now you are here and I am here. If I don't give this knowledge, I am 100% sure you would have got it from somewhere else. 100%. That is not my credit, and neither it is 100% your credit also, because you are getting this knowledge somewhere your past karma, and God has, it's like mercy of God also to understand Him, because the knowledge we are discussing here is very high and it is clear cut knowledge of Bhagavad Gita. There is no mixed philosophy here कि ऐसा करो, अंधविश्वास है, करना ही पड़ेगा, नहीं. Everything is scientific what we are discussing. That is I can 100% say this is the most acceptable philosophy, most practical thing which we can accept, because it is Bhagavad Gita as it is what Krishna told, वो हम देख रहे हैं. So coming to the person who understands this knowledge, कौन सा, soul, God and प्रकृति वाला knowledge पता चल जाता है, then such kind of person he gets equal vision. ठीक है, by this true knowledge he can see everybody. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है learned brahmana, ठीक है, learned brahmana और humble sage बोलेंगे, by the virtue of his true knowledge can see equal vision learned and gentle brahmana
अ काउ, एलिफेंट, डॉग, डॉग ईटर, सबको वो देख सकता है अकॉर्डिंगली, एक लेवल पे देख सकता है सबको. ही कैन सी गॉड इन एवरीबॉडी बिकॉज ही विल नॉट से दैट जो हो रहा है, जो भी चीज इस वर्ल्ड में, ये वो आदमी कर रहा है करके. ठीक है, he can see, like he sees this person, he understands this person is on this level. Why? Because in past life he might have done such activities, and accordingly God is within his heart also, and God is directing him according to his karma. Then elephant है, cow है, dog है, everybody वो animal life में गया है. ये कुत्ता कुत्ता है, so there is the soul, this soul is coming, he has got this body. Why? Because उसका past life का है, and he respects that God is there. सब लोग एक ही पाथ पर है. He understands that कोई आगे है, कोई पीछे है, but everybody is on the path of God, and he understands that, and he can see everybody equally. So yes, if we have that, then we can have real brotherhood. ठीक है, we can perceive everyone as temple of Lord. अगर ये वाला हमारे माइंड में अगर आ जाता है, then क्या बोलते हैं, पोल्यूशन वाला प्रॉब्लम, या फिर हम बोलेंगे भ्रष्टाचार वाला प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम हट जाता है. या फिर क्रिमिनल है, ये सब हट जाएगा. That's why spiritual life, if you give spiritual knowledge to somebody, that is the best thing we are doing to that person, because that person won't do harm to others. He will not kill animals. ठीक है, he will not do harm to prakriti, he will not do harm to others. वो because he sees that everybody, my karma is there, मेरे कर्मा के हिसाब से I have to purify my own karma, I have to purify my desires. और वो जो person है, वो जो कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा, वो उसके actions के हिसाब से, past life के action के हिसाब से he is also forced to do. और जैसे desire है वैसे वो कर रहे हैं. We understand that, एक बड़ा picture हमें समझता है, then we can be very happy, very satisfied, and at the same time we can be very mature also in our dealings. तो इस तरह हम सबको देख सकते हैं. ठीक है, बट कृष्णा इज टेलिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है, ऐसा पर्सन, ही डज नॉट टेक पार्ट इन सोर्सेस ऑफ मिजरी विच आर ड्यू टू कॉन्टेक्ट ऑफ मटेरियल सेंसेस. ऐसा पर्सन फिर सेंसेस के लिए एक्ट नहीं करता. ठीक है, सेंसेस के लिए, जो सेंस प्लेजर के पीछे जो, वो नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि उसको क्या समझता है, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा. रिसाइट दिस वर्स, वेरी नाइस वर्स, यू कैन आल्सो रिसाइट. यही संस्पर्शजा भोगा, यही संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनैव एवते, दुःखयोनैव एवते. आदि अंतवंत कौन्तेय, आदि अंतवंत कौन्तेय, न तेषु रमते बुधा, न तेषु रमते बुधा. So Krishna is telling, so an intelligent person does not take part in sources of misery which are due to contact of material senses. यानी senses से related enjoyment जो misery मिलता है, उसमें वो part नहीं लेता intelligent person. ठीक है, because he knows that such pleasures have a beginning and an end. इसको beginning है और end है, so the wise man does not delight in them. Sense pleasures है, उनको beginning और end होता है. ठीक है, how long you can enjoy, like for example you say puran poli. ठीक है, how many puran polis you can eat? एक पूरन पोली, दो पूरन पोली, तीन पूरन पोली, चार पूरन पोली, पांच पूरन पोली, 6 पूरन पोली, बस. उससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे हम लोग, है ना. Then after that 7th पूरन पोली will become source of misery to us. नहीं चाहिए, नहीं खाना ही पड़ेगा. फिर that will become source of misery. तो एक लेवल है, उस लेवल के आगे हम एंजॉय नहीं कर सकते, वो लिमिट है. तो कृष्णा इज टेलिंग, जो सेंस प्लेजर से जो आ रहा है ना, उसमें इंटेलिजेंट मैन एंगेज नहीं होता है. तो यहाँ पे एग्जांपल्स, आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स. देखो, जो ये मौत है, कीड़े जो होते हैं वो लाइट की तरफ जाते हैं. वो कहाँ लाइट की तरफ जा रहे हैं, तो आंखें अनकंट्रोल्ड है, उनके सेंसेस अनकंट्रोल्ड है. आंखें वो लाइट की तरफ जाते हैं, लाइट को जहां जाके टकराते हैं. समटाइम्स यू माइट सी, विंडो होता है, विंडो को आके वो छोटा सा कीड़ा है, लेकिन ऐसे विंडो को टक टक मार रहा है जोर जोर से. अंदर लाइट दिख रहा है उसको, इसलिए तो ही इज नॉट, उसके सेंसेस अनकंट्रोल्ड है, आईज अनकंट्रोल्ड हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ आईज अनकंट्रोल्ड. देन देयर इज दिस डियर. डियर के कान अनकंट्रोल्ड होते हैं. ठीक है, मेनी प्रोफेशनल जो हंटर्स होते थे पहले, वैदिक टाइम्स में बोलेंगे या जो भी है, वो फ्लूट से या कोई म्यूजिक से, है ना, डियर को शब्द कर देते थे. ठीक है, म्यूजिक से, और वो डियर है ना रुक जाता है. उसको कान इतना सुंदर लगता है, डियर को म्यूजिक बहुत पसंद होता है. ठीक है, आई हैव नॉट साइंटिफिकली नहीं सुना, साइंटिस्ट से नहीं सुना, बट आई हैव हर्ड दैट वो जो हंटर्स होते हैं वो म्यूजिक बजाते हैं और वो डियर रुक जाता है, फिर वो कैच कर सकते हैं उसको इजीली. ठीक है, देन थर्ड वन एग्जांपल है ये भौरे का. भौरा
इसका क्या अनकंट्रोल्ड है? तो भौरे का कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, क्या बोलेंगे हम लोग, नोज, स्मेल, ठीक है। भौरा जाके उसमें बैठता है फ्लावर में, लोटस में, ठीक है, बट वो उसको छोड़ नहीं पाता। वो देख रहा है शाम हो रही है बट वो छोड़ नहीं पा रहा है, और वो लोटस क्या हो जाता है, रात बंद हो जाता है, और वो बंद हो जाता है और भौरा अंदर सफोकेट होके मर जाता है। सुबह ऐसे खुलता है वापस तो मरा हुआ दिखेगा भौरा उसको, ठीक है। सो इसका क्या अनकंट्रोल है? नोज। तो ये जो इंसेक्ट्स है इनका क्या अनकंट्रोल है? तो इनके अनकंट्रोल है आईज। जो डियर है उसका क्या अनकंट्रोल है? ईयर्स। ये भौरा का क्या अनकंट्रोल है? तो नोज। शिप सॉरी फिश का क्या अनकंट्रोल है? तो टंग, ठीक है। फिश को कैसे कैच किया जाता है तो आप सबको पता है, वो डाला जाता है उसको, वहां पे नीचे उसको डालते हैं, थोड़ा सा अर्थों में कुछ लगा देते हैं, और वो क्या बोलते हैं, हुक होता है, ठीक है, और फिश उसको क्या करता है, मुंह में अटक जाता है वो। तो टंग अनकंट्रोल है फिश का एग्जाम्पल, ठीक है। और स्किन या फिर सेक्सुअल अनकंट्रोल होता है एलिफेंट का एग्जाम्पल है। एलिफेंट को कैच कैसे किया जाता है पता है? एलिफेंट को एक्चुअली एलिफेंट को कैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक एलिफेंट को कोई हंटर कैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इतना बड़ा एलिफेंट होता है, उसको एक आदमी लोग कैच करना इज नॉट पॉसिबल। आप जाली वाली भी लगा दो, जाली वाली कोई उसके सामने कुछ नहीं टिकेगा एलिफेंट को। उसको बड़े ट्रक में डालना है पॉसिबल है? आप नहीं हुआ पॉसिबल। उसको कंट्रोल कैसे करना है? एलिफेंट को कंट्रोल कैसे करते हैं? एक फीमेल एलिफेंट को ट्रेन करते हैं पहले, ठीक है, और वो फीमेल एलिफेंट को वो एलिफेंट के पास ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे सपोज ये एलिफेंट है, ठीक है, ये एलिफेंट को और यहाँ फीमेल एलिफेंट, ठीक है, और यहाँ होता है बड़ा सा गड्ढा। ये फीमेल एलिफेंट आती है और इस एलिफेंट को टच करके जाती है, ठीक है। उसको वैसा सिखाया जाता है, टच करती है उसको, ऐसे टच करके जाते हैं, वो उतावला हो जाता है, ठीक है, उसके स्किन टच सेंसेशन डेंजर है। एंड देन वो फीमेल एलिफेंट ऐसा सामने जाती है और ये एलिफेंट उसको ये करता है, क्या बोलते हैं, फॉलो करता है। और फीमेल एलिफेंट क्या करती है, यहाँ से आती है और ऐसा जाती है, और वो ऐसा जाके गिर जाता है, इसमें गड्ढे में गिर जाता है। और फिर गड्ढे में गिर जाता है, फिर उसको कई दिन तक खाने को नहीं देते, फिर उसको बेहोश वगैरह करते हैं, और वो सब करके फिर उसको ये करते क्या। एलिफेंट को ये काय का एग्जाम्पल है? सो दिस इज स्किन अनकंट्रोल टच सेंसेशन या सेक्सुअल प्लेजर। कृष्णा इज टेलिंग ये जो प्लेजर्स है, जो सेंस प्लेजर है, इसमें अटकना नहीं है। इस वर्ल्ड में जो आपका गोल है ना, वो गोल को अचीव करना है, तो आपको ये सेंसेस के जो इमीडिएट सेंस बोलेंगे, टंग बोलेंगे मुझे यही खाना है, आईज बोलेंगे मुझे यही देखना है, ये सब चीजों में जो अटका, ही कैन नॉट रीच हिज गोल। सो इवन अ स्पिरिचुअलिस्ट हु वांट टू अटेन द टॉप मोस्ट गोल इन लाइफ, यहाँ बोला गया है बुधा, दैट मीन्स इंटेलिजेंट वाइज मैन, ठीक है। such kind of person he न तेषु रमते, he does not take pleasure in this thing। उसमें उस प्लेजर में वो उसमें प्लेजर नहीं लेता, नहीं करता। ऐसा है क्या, लाइक फॉर एग्जांपल खाना खाना खाता है लेकिन उसमें is not doing it for his own pleasure। सेंसेस जैसा बोलते हैं एज इट इज वैसा नहीं करता है, he controls the senses, ठीक है। and we come to the last point of the chapter, that is peace formula, how we can get peace in this world। so this is the last verse of the chapter, we will recite this and we'll explain this and the chapter is over। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति, ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। Krishna is telling that a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary, ठीक है, the supreme lord of all planets and demigods and the benefactor and well-wisher, ठीक है, of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries। How somebody gets peace? So Krishna is telling, if somebody understands that Bhoktaram Yajna Tapasam, a real enjoyer is not me, it is God। Krishna is telling, if somebody understands this, that soul is not the real enjoyer, God is the real enjoyer। यहाँ पे एकदम से हमारा ईगो हर्ट होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से क्या सोचते आए हैं कि आई एम द रियल एंजॉयर। एंड एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दिस पॉइंट ऑल्सो। ये पॉइंट डाइजेस्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट जाता है कि आई एम नॉट द रियल एंजॉयर एंड गॉड इज रियल एंजॉयर। जैसे अगर मुझे प्यास लग रही है, ठीक है, तो पानी मैं पीऊंगा
मैं सेटिस्फाई होऊंगा, करेक्ट? अगर मैं अपने नेबर को पानी पिलाऊंगा, वो पहले तो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? अगर उसको पिलाया भी तो मैं थोड़ी सेटिस्फाई होने वाला हूँ। So yes, this point is correct. But in case of God, it is not the correct thing. Okay? If we please God, if He is pleased, then we are pleased. Okay? If we try to please ourselves in this world, we will not be satisfied. There are hundreds of examples for that. Okay, uh, right from many film stars who commit suicide, many actors, many cricketers, बहुत सारे लोग हैं, they enter in drugs and all these things. They are not satisfied. They just want to forget their life. ठीक है, ऐसे लोग हैं. So we can understand ये लोग satisfied नहीं है अपने life में, although they have got everything in their life. Businessmen है, frustrated है their life में, they have to take sleeping pills सोने के लिए. Why? Because all the time they want to enjoy themselves. खुद के enjoyment के लिए कर रहे हैं. But if we see, even if a beggar who is working for God, who is giving some part of it to God, whatever things he do, he is doing for pleasure of God, he is actually satisfied in his life. तो हमें समझना, हमें एब्जॉर्ब करना बहुत डिफिकल्ट जाएगा. ये जो पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट जाएगा कि how by satisfying God we will be happy. But when we practice it, then we can understand actual real satisfaction is satisfying the Lord. When we serve God, then we become more happy. Like for example, you can try, if for your birthday, when your birthday is there, instead of just enjoying yourself, if you just go to temple and you just thank God for giving me this life, thank God for whatever, offer something to God, offer that cake to God, the satisfaction you get will be higher. The experience you will get will be memorable for whole life. It is difficult to understand this point if it is just at this level, but if you practice, then it goes in heart, then we actually can realize that when we work for God, we become more happy. If we work for ourselves, we cannot be happy. So Krishna is telling, I am the bhokta. That if somebody understands, I am the actual enjoyer. If somebody understands that, then he can be peaceful. Then Krishna tells, Sarva Loka Maheshwaram. If somebody understands, I am the controller of everything, then he can be very peaceful. हाँ? Peace formula बोलते हैं हम इस वर्स को. So somebody understands God is in control. I am not in control. God is in control. Actually God is in control, but हम है ना इतने obstinate है, हम क्या सोचते हैं? We think that I am controlling everything, but our heart also we are not controlling. हमारा हार्ट भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते. We cannot stop our heart for 1 second. हमारे लंग्स, किडनी, लीवर ये सब कंट्रोल हो रहे हैं, सब हम नहीं कर रहे कंट्रोल. अभी कोविड की वजह से लंग्स का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, हम थोड़ी कर पा रहे वो, हमने. सो थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. रेन, ये सब सीजन है, सब प्लैनेट्स मूव कर, सब जो चीजें हो रही है हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है. हम बहुत माइन्यूट कंट्रोलर्स है. वी कैन जस्ट डिजायर, हम थोड़ा बहुत कंट्रोल, बेसिक कंट्रोलर है. चलो ये मैं क्या कर लिया, मैंने बॉटल उठा लिया और मैंने पानी पी लिया, बस ऐसे बेसिक कंट्रोलर्स है हम. ठीक है, what to think about the world and the destiny, दूसरे पर्सन के बारे में हम दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते. Many husband and wife, there is fight between husband and wife. Why they fight? Because both of them try to control each other. But then we have to understand, I am not the controller. ठीक है, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ. सामने वाले पर्सन का एक अलग नेचर होता है. हम भी लाइफ में, स्टूडेंट्स के लाइफ में भी बहुत बार है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बोलते हैं वो फ्रेंड ऐसा क्यों, वो फ्रेंड ऐसा क्यों, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों. अरे बाबा, हम कंट्रोल में नहीं है. We will try do our best, but सामने वाला पर्सन है, उसका क्या थॉट्स है, उसका पास्ट एक्टिविटी क्या है, सब हमें कुछ भी पता नहीं. When we understand God is in controller, so we thank God for everything. Okay, we thank Him for everything. We will not take what we say things to heart. Then we will understand He is the controller. And then last thing is, Krishna is telling, you can be peaceful. So Surudam Sarva Bhutanam. That is, one who understands that Krishna is my most dear friend in this life. He is the best well-wisher. Neither my mother, nor father, nor my friends, nor any relative can help me at the time of death. Nobody can help me at the time of death. Okay? Whatever is happening with me right now is according to my karma. People can just help somewhere if that is available in my karma. Then people can help. If it is not available, nobody can help. So anybody in this world, okay, nobody other than God, nobody is a real well-wisher. Now in this world also we see
mother's love is actually the topmost in this world, we can say highest हम बोलेंगे इस body से related हमारा जो love है mother का love. Mother is the person we can see from all other people, ठीक है, mother father बोल सकते हैं हम लोग, who actually become happy in our happiness, है ना, हम कोई चीज हमें कुछ मिलता है, हम कुछ they become happy in our happiness. Other all people, most of the people, they envy, वो envy करते हैं, अरे इसको कैसे मिल गया इससे ज्यादा, although they will say very good, wonderful, congratulations, you did great thing, वो सब बोलेंगे, but inside their heart they are thinking why he got this, why he got this, why I didn't got, why that person didn't got, तो बहुत मिल गया इसको, like that they will think. But only mother father, what love they have, no, according to their love. So in Bhagavatam it is said that what love millions of mother cannot give, that love God gives us. But we don't understand that because we are seeing somewhere else, we are not seeing God, we are not seeing what he have given to us. Now if we see the Paramatma as God, Krishna comes in every body with us. The soul goes on taking one body after another. एक body हो गया, दूसरा body, दूसरा हो गया, तीसरा. So Paramatma is also present in the heart of a worm in stool. Stool होता है नंबर, उसके अंदर वर्म्स होते हैं, कीड़ा होता है, उसके अंदर भी गॉड इज विद देम आल्सो, ठीक है, दैट स्टूल. जैसे उसका कर्मा खत्म होता है, उसको नेक्स्ट बॉडी अकॉर्डिंगली मिलता है. God is actually with us all the time, and he is within this body, he is helping us, he is all the time our well wisher, and that's why he gives us spiritual life. He comes in this world again and again, he sends so many great souls, all devotees, right from हम बोल सकते Jesus Christ, Muhammad Paigambar, all are like devotees if you consider, ठीक है. Then Lord Buddha and Ramanujacharya, Madhavacharya, Chaitanya Mahaprabhu, all these things, then even Srila Prabhupada. So all these great souls, they have come, they are giving the message of God in this world. वो message of God there, that is also mercy of God that we are getting that. And he spoke Bhagavad Gita, that is also great mercy. If we understand that, then we will be very peaceful in this world. So overview of the chapter. First, Krishna tells that better than renouncing, work in worship is topmost, Krishna says. Then Krishna tells there are three doers. We saw one is soul, super soul, and material nature. Soul can only desire, super soul sanctions, and material nature is provider or carry out. Material nature carries out and then provides to the soul. Okay? And then such a person who has this knowledge, he himself also, he becomes actually devotee, and then for others he sees everybody, himself he will practice spiritual life first thing, okay? And for others, other people, he sees everybody, God's part in everybody, he sees everybody as temple. Maybe any animal, that may be any person, okay? He sees everybody on equal vision, he respects everybody. And then this formula, that how we can become peaceful. So Krishna is telling one who understand, Krishna is well-wisher of everybody, he is Lord of everything, and he is beneficiary of everything. If we feed him, then we become happy. Like for example, there is a story in Panchatantra. It's a body के जो हाथ पैर ये सब fight कर रहे, क्या बोल रहे कि actually है ना, ये stomach है ना, stomach को, हम स्टमक को क्यों फूड दे रहे हैं ना, हम खुद एंजॉय करने का ट्राई करते हैं. तो हाथ क्या करता है, हाथ लेता है लड्डू, ऐसा एंजॉय करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है. मगर हाथ को जो स्ट्रेंथ मिल रहा है वो कब मिलता है, तो उसने लड्डू मुंह में डाला, स्टमक को गया, एंड स्टमक में से देन एनर्जी, दैट हैंड विल गेट एनर्जी. इफ हैंड ट्राइज टू ईट लड्डू, ईट फ्रूट और व्हाटएवर फूड लाइक दिस, slowly after some time it will go down, उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा. So similarly, if we try to enjoy in this world for ourselves, will not be happy. Krishna is telling you have to, what you have to do, if you do it for God, then it will give you most satisfaction, Krishna is telling. So that is work in devotion and working for the pleasure of God. Okay, so we finish our chapter here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Any questions? Or else you can type in the chat box also. WhatsApp में भी आप type कर सकते हैं, we will be able to answer. Otherwise you can ask here also, no problem. Okay. Sir, Yes.
सर हम जब आप कह रहे हैं कि गॉड रियल कंट्रोलर है हम सबका, तो जब हम पाप और पुण्य करते हैं तो उस पर कंट्रोल किसका होता है? क्योंकि हमें तो पता है ये पाप है या पुण्य है। ओके, यस, सी, हम सोल है, ठीक है, सोल इज देयर आर टू, वन इज गुड एक्टिविटी एंड बैड एक्टिविटी, ठीक है। ये सोल का डिजायर होता है, अकॉर्डिंग टू ही कैन डिजायर, इस हमारे हाथ में ना, तो सोल कैन चूज। अब ही इज चूजिंग गुड एक्टिविटी, देन उसका जो रिजल्ट है वो अपने आप मिलता है, उसको रोक नहीं सकते। और जो बैड एक्टिविटी किया उसका भी रिजल्ट अपने आप मिलता है, उसको नहीं। हमारा कंट्रोल कहाँ पर है? हमारा कंट्रोल हमारे डिजायर्स पे है या हमारे चॉइस पे है, व्हाट वी चूज। यू हैव टू ऑप्शंस, यू हैव ऑप्शन ड्रिंक वाटरमेलन जूस, और यू हैव ऑप्शन टू ड्रिंक अ बियर, ठीक है, और वाइन बॉटल है, दो ऑप्शन है। व्हाट यू चूज अकॉर्डिंगली यू गेट रिजल्ट। So it is our choice to do good or to do bad. God is controller, but He has given a free will. हम इसके बारे में मैंने बताया ना, God has given free will to us. This is the special thing. We are not fully ऐसा करो, वो क्या हो जाता है, वो मशीन जैसा हो जाता है। मशीन को जैसे क्या है, फोर्स्ड है मशीन, मशीन का खुद का दिमाग नहीं होता, अलग से उसको कुछ डिजायर नहीं होते। बट सोल हैज अ स्पेसिफिक डिजायर, एंड true lover will never force his beloved to love him. For example, वो अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बोलेंगे, हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बहुत सारे ये आ जाते हैं, क्या कहते हैं, उसमें कंटेमिनेशंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हस्बैंड अगर वाइफ को बोलता है, टेल मी यू लव मी, टेल मी दैट यू लव मी, वो ऐसा निकालता है, चाकू निकालता है। वो वाइफ अगर बोलती है आई डोंट लव, और ऐसा बोलती है, फिर ये चाकू निकाला, बोलती है यस आई लव यू, आई लव यू। ये लव है ना, ये लव कोई काम का नहीं है, हस्बैंड को भी सेटिस्फेक्शन नहीं, वो लव नहीं है, ठीक है। बट हस्बैंड विल गिव ऑप्शन टू वाइफ दैट डू यू लव मी, ही विल आस्क, ठीक है। इफ शी सेज नो, देन ही विल सर्व हर, हेल्प हर, गिव हर व्हाटएवर शी वांट्स, ठीक है। उसको साड़ी चाहिए, ले साड़ी ले, हार चाहिए, लो हार लो, है ना। ही विल हेल्प हर, वो जो भी है, जो भी चीज है, एंड देन शी विल से यस आई लव यू, है ना। तो कृष्णा also has given free will to us, and by that free will he wants us to choose him. There are various options we have options to choose the material things of this world and get enjoyment there for ourselves, or we have option to go towards God. फ्री विल का हम कैसे यूज करते हैं? अगर हम फ्री विल का यूज गलत यूज करते हैं, देन वी गेट कर्मा, एंड देन अकॉर्डिंग टू कर्मा, देन हम लाइफ लेते रहते हैं, फिर हमें फिर से चांस मिलता है, अगला लाइफ फिर से चांस मिल रहा है। हर स्टेप पे हमारे पास चॉइस का ऑप्शन होता है, इस तरह हमें ऑप्शन मिलता रहता है। समझा? You got the answer? Yes, sir. Okay. Just सर हाँ बोलिए। सर वन कंफ्यूजन है सर। महाभारत में ना दुर्योधन को ना स्वर्ग मिला था और उसने हाँ। पाप भी किए थे, लेकिन उसने अपने क्षत्रिय का धर्म भी निभाया था। इसलिए अगर मैं आपको उसी बात से रिलेट करूँ टेररिस्ट से, तो टेररिस्ट में क्या होता है, उनको बोलते हैं कि आप ऐसा काम करो, बम फोड़ो, आपको जन्नत मिलेगी ऐसे। तो अभी ये भी उनको लागू होगा या उनका कर्म से उनको ये मिलेगा फल? Yes. So it is according to the laws of nature, according to laws of scriptures, it is said that if somebody dies in battlefield protecting his land, जमीन, या protecting his country, अगर कोई सोल्जर मरता है, so he gets स्वर्ग। उसके कोई भी कर्म कैसे भी हो, उसको स्वर्ग मिलता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बट इफ यू डू फॉर रॉन्ग थिंग, इफ यू डू, और बैटलफील्ड में अगर भले ही कोई रॉन्ग, यानी आपका कंट्री भी खराब है, लेकिन आप उसके लिए बैटलफील्ड में आप फाइट कर रहे हैं, नॉट फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, करेक्ट। बैटलफील्ड में कोई सोल्जर मर रहा है, वो फाइट पूरे कंट्री के लिए कर रहा है। तो बाय सीइंग हिज दैट डिटैचमेंट, वो डिटैचमेंट के बेसिस पे उसको स्वर्ग मिलता है, ठीक है। गेट्स हायर प्लेनेट, जो भी हायर उसका ये मिलेगा, उसका पुण्य। तो अकॉर्डिंगली दैट, अब जो टेररिस्ट है, उसके एक्टिविटीज कौन से कैटेगरी में आते हैं? एक्टिविटीज कैटेगरी ही अधर्म के कैटेगरी में आता है। अब दुर्योधन का भी आप बोलेंगे कैटेगरी अधर्म के इसमें आ रहा है दुर्योधन का, बट दुर्योधन का हम अगर देखते हैं तो ही वो जो स्वर्ग में जो बोला जा रहा है महाभारत में दो कंसेप्ट है। महाभारत के एंड में स्वर्ग में कुछ लोग बोलते हैं पांडवों को भी नर्क मिला है, कहाँ बताया जाता है पांडवों को स्वर्ग मिला, बट पांडव नेवर वांटेड। स्वर्ग और नरक वाला जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सिर्फ इसी वर्ल्ड का है। इन दिस वर्ल्ड देयर आर लाइक, यू डू गुड यू गेट गुड,
if you do bad you get bad, and then again you have to take birth and you take birth one after another, ऐसा मिलता है. तो सोल्जर के अगर हम देखते हैं, सोल्जर को क्या मिलेगा? सोल्जर विल गेट हायर बर्थ, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है. बट अगर वो अधर्म की तरफ से सोल्जर, इफ ही इज फ्रॉम बैड साइड एंड इफ हिज मोटिव इज आल्सो बैड, ही अंडरस्टैंड्स दैट ही इज फ्रॉम बैड साइड, वो बैड आदमी की तरफ से काम कर रहा है, उसको ये भी पता है बैड, then that person will not get स्वर्ग. what he gets is he will get नरक. why? उसको लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में मिलेगा, अगला जो हेली सिचुएशन मिलेगा, ये सब मिलेगा. Then why, you may ask, why Duryodhan got Swarga or why he gets higher planetary system? Because there was Krishna in the battlefield. Okay? So it is said that in Mahabharat, whoever died, जो भी मरा है महाभारत में, everybody has got higher destination. Why? Because there was God personally present in front of them. So God does not want you to go to hell or every person go to hell. He said that any person who sees God, any person who comes in contact with God, when he is killed by God, that's the same वो person he will go to higher destination. उसका कभी devotee भी बन गया कोई, वो भी higher destination जाता है. कोई अगर he is killed by God also, he also goes higher destination. So what is speciality about Duryodhan's dying is he gets higher destination, he got, because he saw God there. So that is one reason. Other reason we say why Duryodhan might have got is because he fought with ये क्या बोलेंगे हम उसको, प्रॉपर जो वॉर जो ये होते हैं ना रूल्स, उस हिसाब से फाइट करता है, किया है. इसलिए जो वॉर के रूल्स के हिसाब से सोल्जर फाइट करता है, वैदिक इसके हिसाब से आपको ये शंख बजाना है, फिर आपको वॉर करना है, शाम हो गई तो आपको बंद करना है, ये सारे रूल्स है, वो रूल्स के हिसाब से कर रहा है, फॉलो करके. देन द पर्सन इज कंसिडर्ड ये सही है, कंट्री के लिए कर रहा है वगैरह. मगर आजकल कैसा है, डायरेक्ट बॉम्ब डाल के जो क्या कहते हैं हम लोग, जो सिटीजन्स है हु आर एक्चुअली सिनलेस है, जिनका कोई ये नहीं है, बेचारे इनोसेंट है, उनको खत्म कर रहे हैं. दैट इज अधर्मिक वे. फाइटिंग का, वॉर का भी स्पिरिट गलत है, जो जिसके लिए कर रहे हैं वो भी गलत है. एंड देयर इज गॉड, गॉड का क्या है पिक्चर, तो देयर इज नो कृष्णा, जैसे इनके साइड में थे, दुर्योधन के समय थे. दिस मे बी सर्टेन रीजंस व्हिच आई फील. Okay, so I think we are much out of time. So if anybody else has question, we can put in chat box and हम उनको answer भी कर सकते हैं, ठीक है. So thank you very much for coming. We'll meet for next session. I'm not sure whether next session will be tomorrow or it will be day after tomorrow or what. I will confirm you in the WhatsApp group, because tomorrow as Saturday Sunday other sessions are there, two more sessions are there, वो device के session होते हैं. I will confirm it and then I will inform you in the group whether it will be tomorrow or not. Okay, thank you very much. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Hare Thank you, Krishna sir. sir. Hare Krishna sir. Hare Krishna. Krishna.